टॉक्स जहाँ पे हम ऐसे लोगों को अवार्ड बांटते हैं जिन्हें अवार्ड मिलने कोई सेंस नहीं बनाते हैं। आज हमारे पास लोगों के सबसे चहीते क्रिएटर है जिनको हम लोग रेलेवेंस के लिए नहीं, इररेलेवेंस के लिए अवार्ड देने वाले हैं। जी हाँ, आपने रेलेवेंस का अवार्ड तो सुना होगा, लेकिन आज हम ऐसे इंसान को अवार्ड बांटने वाले हैं जो अच्छे से अच्छे इवेंट पे भी वीडियो बनाता ही नहीं है। तो वेलकम करिए बिहाइंड द वॉइस एफसी को फॉर बीइंग द मोस्ट इररेलेवेंट यूट्यूबर ऑफ द ईयर। जी जी, लाइए लाइए, धन्यवाद। अच्छे कर्म मैं करता नहीं हूँ, बुरे कर्मों के लिए अवार्ड मिलता नहीं है, तो जो मिल रहा है उसमें खुश हो जाते हैं। बीइंग द मोस्ट इररिलेवेंट, देखिए मेरा हाथ जल गया था, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख के रखी है। ऐसा कंटेंट किसी इंडियन फुटबॉल पेज ने नहीं बनाया होगा जैसा मैं बनाने वाला हूँ, जैसा मैं दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए जल्दी से। हम लोग बढ़ते हैं वीडियो की तरफ फटाफट से, क्योंकि मैंने किसी चीज़ की बात नहीं करी, तो आज सब कुछ की बात करूंगा। लेट्स गो दोस्तों। इट्स अ हाई टाइम वी रियलाइज what we have in our club is a serious threat for every big club in the world. What we have in our club is a blessing from heaven. What we have in our club is a generational talent, a potential best player to ever play the game, the best player to ever touch the ball. I'm looking at your eyes right now and saying this right in front of your face, and correct me if I'm wrong. Lamine Yamal is the best footballer in the world right now, and will become better than all these Kylian Mbappe's, Erling Haaland's, Vinicius Juniors in the world ahead in his career. You cannot compare him with anyone from his age. Talk about Arda Güler, talk about Desiree Doué, talk about Estevao, talk about Nico Paz, talk about any player around his age. He won't be near the level of Lamine Yamal. You compare him to Vinicius Juniors, Erling Haaland's, Kylian Mbappe's. Lamine Yamal is 9, 10, 8 years younger than them, all of them. What he will become in next 4 years is just greatness. और इस बात से हैरान मत होना कि अगर लामिन यमाल आपके आइडल्स का रिकॉर्ड तोड़ दे आगे जाके, बिकॉज ही कैन डू इट. At the age of 18, Lamine Yamal has won Euros, finished second in the Ballon d'Or podium at the age of 18. Lamine Yamal is the most DNA player of Barcelona. Lamine Yamal has won most duels, most dribbles per 90 this year by any player. By any player, he's number one in those dribbling stats. This is just pure greatness that we're watching. I cannot stop glazing about this kid. This is. Can you even correct me on if I'm saying Lamine Yamal is the best right now? Do you see any player playing like him? Anyone? Name any player that plays like Lamine Yamal, and don't name Michael Olise. Do not name Michael Olise being the best right winger in the world, because okay, I'm not discrediting Olise. I'm not throwing him under the bus, but Olise plays for Bayern Munich. Come on, भाई. Bundesliga है. Bundesliga में एक ही टीम एग्जिस्ट करती है. You cannot question on this, bhai. Just accept it, please. I'm requesting you all. Accept it. Lamine Yamal is the best right winger in the world. Please accept this. Just think about it. Just compare it. Just compare him with anyone in terms of technical abilities. भाई ओलिसे का गेम देख लो, लामीन का गेम देख लो. लामीन destroys defenders. अधेड़ उम्र के 30-35 साल के डिफेंडर्स को ऐसे फेंक देता है जैसे खिलौने हैं भाई वो उसके लिए. Every touch that he takes, he has wings on his back. He flies with the football. Lamine Yamal is not just a player, दोस्तों. He's a creation by a god. And the same God that created your Lionel Messi and your own Cristiano Ronaldo. तो दोस्तों ये बात होगी लामीन यमाल की. 3.5 मिनट से मैं लामीन यमाल की बातें कर रहा हूँ बिकॉज दैट गाय इज जस्ट वंडरफुल. दैट गाय इज जस्ट वंडरफुल. बट कैन वी टॉक अबाउट डिफरेंट प्लेयर्स. अब मैं लामीन यमाल के बारे में इसलिए आधा वीडियो कवर कर लिया ना, बिकॉज 5 GNA in 3 matches. Or 4 maybe. नहीं, 5. A hat trick, an assist, and a goal. 5 goals and assists in 3 matches. This is crazy. Have you ever seen
लामीन यमाल प्ले लाइक लामीन यमाल इज प्लेइंग राइट नाउ। ऐसे नंबर्स उसने कभी प्रोड्यूस नहीं करे भाई। ही इज जस्ट गेटिंग बेटर एंड यू कैन सी इट इन हिज स्टैट्स। वो किस स्पीड से गोल्स एंड असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है भाई, वो पागल हो चुका है। ही इज गॉन मैड और वो नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं एंड इट्स स्केरी भाई। ही इज रीचिंग दोस लेवल्स। This is crazy. This is insane what he's doing. And Newcastle वाला मैच I'm rooting for it दोस्तों। लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं, आप लोग को लाइव स्ट्रीम में मिल जाऊँगा। आप लोग प्लीज़ आना, साथ में बैठ के मैच देखेंगे, मज़ा आएगा। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, सब्सक्राइब भी कर लो ताकि मैं जैसी स्क्रिप्ट बना के वीडियोस डालूँ आपको देखने को मिले और आपको मज़ा आए। तब भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इफ़ यू डाउट मी, अगर मज़ा नहीं आएगा तो ठीक है, पैसे वसूल, आप मत करिए सब्सक्राइब। बट तब तक के लिए प्लीज़ ट्रस्ट मी एंड ट्रस्ट माई बॉयज़। बार्सिलोना विल कम बैक। सेकेंड चीज़ जिसके बारे में बात करने वाला, सेकेंड प्लेयर जिसके बारे में बात करने वाला हूँ भाई, I join my hands and pray to you every day. I worship you. Pedri Gonzalez, thank you for being in my club. I thank every second of signing Pedri Gonzalez. Oh my God. Pedri Gonzalez is magic. Nothing but magic. The wizard, he is the wizard. He knows the spells that he cast by 8 प्लेयर के बीच से बॉल निकाल के देगा और किसी को नहीं दिखेगा। नो वन हैज़ अ क्लू अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन विद देम। बॉल निकल के चले जाएगी 8 प्लेयर के बीच से एंड दे विल जस्ट लुक एट इट एंड दे विल जस्ट बी लाइक ओके, द बॉल इज मे बी ब्लेस्ड बाय पेदरी गोंजालेस, वी शुड नॉट टच इट। भाई द लामीन यमाल गोल, दोनों हैट्रिक का लास्ट गोल एंड देन द एथलेटिक क्लब वाला गोल, Pedri Gonzalez. What a... Bhai, we have best players in the world in our team. You just cannot see it. भाई आप लोग रैंट किस बात का कर रहे हो? आप रो क्यों रहे हो? आप ये क्यों कह रहे हो कि हमारी टीम खराब है? भाई we have the best players. We have the best players. This is all we can have. We have the best right winger in the world. We have the best midfield duo in the world. Frenkie de Jong and Pedri Gonzalez are beautiful. Pedri Gonzalez, you are a beauty, you are a magician, and I worship you every day. Oh my God, I don't have words to explain what Pedri Gonzalez is. By the touches he takes on the ball, the turns he takes with the ball, भाई बंदे पागल हो जाते हैं। The midfield of the opposition ऐसे जकड़ के रख लेता है। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंकी de Jong और पेड्री गोंजालेस, इतने पोजीशन उनसे छीनना इम्पॉसिबल है। दिस डुओ every match that they if they're starting together, अगर आपको बार्सिलोना की स्टार्टिंग लाइनअप में किसी दिन पेदरी गोंजालेस और de Jong दिख जाते हैं साथ में, आप खेलना छोड़ दो, आप फील्ड छोड़ के भाग जाओ। स्टॉप ट्राइंग, स्टॉप इवन थिंकिंग अबाउट पोजीशन। आपको मिल रही है बॉल? नहीं मिल रही है। हमको बॉल मिलती है, पेदरी लेके चले जाता है, वो घूमते रहता है इधर उधर, de Jong के पास जाती है, de Jong टर्न्स लेता है, ट्विस्ट करता है, खत्म हो जाता है। हमारा मिडफील्ड खत्म है, वी कैन नॉट स्नैच द बॉल। एंड देन देयर इज मार्क बर्नाल बिहाइंड हिम। मार्क बर्नाल इज टैलेंटेड एज फक। भाई मैं पागल हो रहा हूँ, मैं क्या बातें करूँ। पिछले दिनों में जो मैं देख चुका हूँ, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट। I just cannot explain what's going on in Football Club Barcelona right now. Pedri Gonzalez, Frenkie de Jong, Marc Bernal, beautiful footballers, beautiful midfield. Fermin Lopez, भाई Fermin Lopez just scores bangers. और मैंने पिछली वीडियो में भी फरमीन के बारे में बात करी है, तो मैं क्या तारीफ करूं फरमीन की। भाई मेरे लिए फरमीन इज as talented as any other midfielder in the world right now. भाई फर्मीन लोपेज आगे पता है क्या बनेगा? आगे जाके आप उसका कंपैरिजन करोगे डोमिनिक सोबोस्लाई से, आप जाके फर्मीन लोपेज का कंपैरिजन करो जूड बेलिंगम से, आप जाके फर्मीन लोपेज, ही विल बी राइट, ट्रस्ट मी। आज मैं ये कह रहा हूँ, कल अगर फर्मीन लोपेज बन जाएगा तो याद रखना कि मैंने बोला था फर्मीन लोपेज विल बी वन ऑफ द टॉप मिडफील्डर्स इन द वर्ल्ड। अभी आप मजाक उड़ा लो, अभी आप कह लो कि अरे सोबोस्लाई, अरे जूड बेलिंगम, इसका कंपैरिजन करेंगे हम जूड बेलिंगम से, ही विल बी अप देयर, इफ नॉट बेटर ही विल बी as good as all of them. Trust me, फर्मीन लोपेज। मैं बताता हूँ हमारी टीम में आप किस पे बैंक कर सकते हो,
अगर मैं अंधा हूँ ना, इफ़ आई एम ब्लाइंडेड, ठीक है, मुझे मुझे मैं मेरी आंखों में पट्टी बांध दी गई है, ठीक है, और मुझे एक क्लिफ से नीचे धक्का देने के को कहा गया है कि मुझे धक्का दे दो, ठीक है, तो अगर ऐसा ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको मैं अपने पीछे खड़ा करने के लिए खड़ा करूंगा और मुझे नहीं धक्का देगा, मुझे बचा लेगा? ऐसा कौन सा प्लेयर है? ये सारे बार्सिलोना फैंस के लिए है कि आपने किसके ऊपर भरोसा करना है, ठीक है। लामिन यमाल नंबर 1, सबसे ज़्यादा मोस्ट ट्रस्टेबल गाय, वो आपके क्लब का लौंडा है, वो कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, जा भी सकता है, आई मीन थिंग्स हैपन, बट लामिन यमाल इज द ट्रस्टेड गाय इन आवर क्लब. Rafinha fights for the badge. Every match that he plays, he shows the intensity. अब Rafinha थोड़ा बस भागने वाला लौंडा रह गया है. He's not producing those number of last season, but Rafinha is the guy that you can trust. ठीक है, Rafinha. Robert Lewandowski. अरे यार मजाक मत, ठीक है, मेरी बात सुनो, मेरी हेयर में आओ, ठीक है। जब हमारे पास कुछ नहीं था ना, तब हमारे पास रॉबर्ट लेवेंडोस्की था, और तब रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया है। तो ट्रस्ट में यार, वो लौंडा है, वो ही इज अ ट्रस्टेड गाय। परफॉर्म करे ना करे वो दूसरी चीज़ है, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द थिंग। आप ट्रस्ट किस पे कर सकते हो, आप कौन से प्लेयर पे ट्रस्ट करना है, इज रॉबर्ट लेवेंडोस्की। फ्रंट थ्री में, ठीक है। मिडफील्ड, पेद्री गोंजालेस, फ्रेंकी डी जॉन्ग, फर्मीन लोपेज, दिस मिडफील्ड। अब मैं ये क्या गिना रहा हूँ, मैं आपको ये याद दिला देता हूँ, क्योंकि अपने कसाडो भी बहुत अच्छा प्लेयर है ना, कसाडो भी स्टिक, अब यार चलो अच्छा ही है कसाडो, स्टिक किया हुआ है अपनी टीम के साथ, ही इज़ नॉट प्लानिंग टू लीव और समथिंग, भले उसको मिलता है नहीं मिलता मैच टाइम, वो रहा है हमारे साथ, है ना, ही स्टिल विद अस। तो कसाडो को मैं इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, दिस इज द परफेक्ट बार्सिलोना प्लेइंग 11 दैट आई एम मेकिंग राइट नाउ, कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हो, कौन से प्लेयर जिस दिन खेलेंगे तो आपको लगेगा कि ओके वी आर विनिंग टुडे। तब क्योंकि गावी भी है, कसाडो भी है, वी हैव आवर मिडफील्डर्स, डैनी ओल्मो भी है, ऑल्दो ओल्मो थोड़ा सा इफ्स एंड बट्स वाला प्लेयर लगता है मुझे। द डे ओल्मो प्लेज, ही प्लेज एज द बेस्ट प्लेयर इन द पिच, ही इज द बेस्ट प्लेयर इन द पिच वेन एवर द डे ओल्मो प्लेस, ठीक है, जब उसका दिन है। जब उसका दिन नहीं है, हिज पेपर, एक टैकल मारो वो गायब हो जाएगा, एक धक्का मारो वो गायब हो जाएगा, एंड ही लूजेज अ लॉट ऑफ पोजीशन, थोड़ा कंफ्यूज्ड रहता है वो, थोड़ा फंस जाता है उसका गेम, लाइक वो, और ऑल्सो वो मिड गेम ना फ्रस्ट्रेशन दिखाता है बहुत ज़्यादा। ही अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ अ गुड थिंग, ही इज़ अवेयर अबाउट हिज परफॉर्मेंस, वो समझता है, और फिर वो थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है कि अबे यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं टचेस क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, मैं शिफ्ट्स क्यों नहीं मार पा रहा हूँ, मैं स्विचेस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शूट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। वो फ्रस्ट्रेशन दिख जाती है उसके गेम में। बट दिस इज नाउ हाउ थिंग्स वर्क, राइट। आप फ्रस्ट्रेटेड रह के गेम में नहीं जा सकते, यू हैव टू कीप योर मेंटल अप। तो डैनी ओल्मो को इसलिए मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बट द बेस्ट मिडफील्ड ऑफ बार्सिलोना इज पेद्री, फ्रेंकी डी जॉन्ग, फर्मीन लोपेज। याद रखो, कैम प्लेस फर्मीन लोपेज, पेद्री एंड फ्रेंकी डी जॉन्ग सेंटर मिड्स, ठीक है। 4-3-3 बना रहा हूँ। बैक लाइन, ओ मैंने फ्रंट से स्टार्ट किया क्या, ठीक है, हो जाती गलती, इंसानी हूँ मैं भी, पीछे से स्टार्ट करते हैं वैसे लाइन है, बट ठीक है। लेफ्ट विंगर, हेयर मी आउट, जॉ कैंसेलो, नॉट बाल्डे, नॉट जेरार्ड माल्डीनी, नॉट जॉफ्री टॉरेंस का मैं नाम भी क्यों ले रहा हूँ, जॉ कैंसेलो, ठीक है। सेंटर मिडफील्डर, यू कैन नॉट क्वेश्चन मी, ठीक है, अब पूछना नहीं कि जॉ कैंसेलो क्यों, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सेंटर मिडफील्डर जेरार्ड माल्डीनी, द सेकंड सेंटर मिडफील्डर विद जेरार्ड माल्डीनी विल बी पाउ कुबारसी के बाद द राइट बैक ऑफ द टीम विल बी, this is considering the fact that Jules Koundé is unavailable, एरिक गार्सिया, बिकॉज लॉजिस्टिकली बात कर रहा हूँ, हमारे पास और कुछ ऑप्शन नहीं है। राइट बैक कौन खेलेगा भाई, कौन खेलेगा, कोई खेल सकता है? आप क्या जेरार्ड मार्टिन को दोबारा लेफ्ट बैक पे देखना चाहते हो? नहीं देखना चाहोगे, कोई भी नहीं देखना चाहेगा भाई। सेंटर में वो सेंटर बैक बहुत अच्छा खेल रहा है, उसको खेलने दो, अपने कंसेलो को संभालने दो लेफ्ट बैक, और एरिक गार्सिया राइट बैक वैसे भी खेल लेता है, डिफेंसिवली भी एरिक गार्सिया अच्छा ही है, ठीक कर लेता है,
और डुअल्स विन कर लेता है वो, एरियल डुअल्स में भी बहुत अच्छा है, हेडर वेडर खूब मारने आता है बंदे को, और बॉल पेइंग एबिलिटी भी ठीक है गार्सिया, चल जाएगा, ठीक है। ऑन द गोल, डू वी नीड टू थिंक अबाउट इट? टू सीरियसली, इज दिस इवन अ क्वेश्चन? Joan Garcia is probably one of the best goalkeepers Barcelona ever had. बार्सिलोना की हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर है वो, बेस्ट नहीं है, 2 और उससे बेटर है, 2 याद रखना, 2 बाय 2। एक तो विक्टर वाल्देस हो गया, दूसरा मार्क एंड्रे ter Stegen। क्यों अबे क्यों मार्क एंड्रे ter Stegen? व्हाट आर यू सेइंग ब्रो? भाई मार्क एंड्रे ter Stegen अभी खराब है यार। मार्क एंड्रे ter Stegen, बैक व्हेन आई यूज्ड टू वॉच आवर प्राइम बार्सिलोना, ही वाज द बेस्ट गोलकीपर दैट वी हैड। ही हैड दैट मेंटालिटी। वो सेव्स अभी नहीं करता, वो स्टैचू बन जाता है, पहले नहीं बनता था भाई, करता था वो काम अपना। ter Stegen इज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स बार्सिलोना एवर हैड। जॉन गार्सिया अभी नया आया है, क्या पता मैं बाद में उसको, डिपेंडिंग ऑन द लेगेसी, यार ter Stegen ने जीता भी तो है, डिपेंडिंग ऑन द लेगेसी जॉन गार्सिया को मैं ऊपर रख सकता हूँ बाद में, बट अभी तो ter Stegen है, ठीक है। डू यू एग्री विद मी और नॉट? कमेंट में बताओ। दिस इज द बेस्ट 11 ऑफ बार्सिलोना, ठीक है। अब सीरियसली, वी हैव बीन बॉलिंग आउट। चैंपियंस लीग की बात करते हैं, न्यूकासल की बात करते हैं, न्यूकासल यूनाइटेड, हेलो वेलकम येट अगेन, वी आर कमिंग बैक, and this time there are certain things that I want to mention, ठीक है। अब देखो, न्यूकासल पढ़ाई करके आएगी, होमवर्क करके आएगी, ठीक है। नहीं करके आई तो उनकी गलती कि क्यों नहीं करके आई, दे डिजर्व टू लूज देन, बट न्यूकासल ना होमवर्क करके आएगी, और होमवर्क में वो ये जरूर स्टडी करेगी कि कैसे बार्सिलोना की डिफेंस लाइन को हम तो तोड़ सकते हैं, ठीक है। पिछली बार मार्कस रैशफोर्ड ने 2 गोल मार के हमको जिता दिया था, बट this time maybe things won't work the same way. We have to put our effort, put our whole heart in the game। और 2 लेग का मैच है, आई थिंक बार्सिलोना निकाल लेगी। अभी हम लोग करेंगे अपने राउंड ऑफ 16 की प्रिडिक्शंस कि कौन सी टीम जा रही है आगे और फाइनल किसके बीच होगा, बट अभी का बात करते हैं बार्सिलोना न्यूकासल की। तो बार्सिलोना जीत रही है मेरे हिसाब से। प्रिडिक्शन मेरी होगी 5, ये एग्रीगेट स्कोर है, 5-2 बार्सिलोना, 5-2 बार्सिलोना। न्यूकासल भी गोल स्कोर कर सकती है, न्यूकासल खराब टीम बिल्कुल भी नहीं है, और यही बात है कि वी हैव टू जस्ट कीप आवर हेड्स अप एंड फोकस के साथ खेलना पड़ेगा गेम पूरी तरीके से। न्यूकासल थोड़ा टफ, थोड़ा देखो ट्रिकी फिक्सचर है, मेरी बात मानो, इंटेंसिटी न्यूकासल के पास है। दे आर वन ऑफ दोज प्रीमियर लीग टीम्स जहाँ पे हाई प्रेसिंग चलती है, जहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर डाला जाएगा, यू नो, तो थोड़ा ट्रिकी फिक्सचर है, बट यू नो प्रेसिंग की बात आती है तो पेद्री है हमारे पास संभालने को, पीछे हो जाएगा काम, ट्रस्ट मी, वी आर गोइंग अहेड। अगले राउंड के आगे देखे जाएंगे कहानी अपने प्रिडिक्शंस में, बट अभी के लिए बात यह है कि ये वीडियो इतनी लंबी इसलिए हो रही है क्योंकि मुझे 3 मैचेस की बात करनी थी, और बात करनी थी अपने बहुत प्यारे प्लेयर्स के बारे में। 3 मिनट 3.5 मिनट तो मैंने केवल लामिन यमाल के बारे में बात करी है, बट आई हैव नो शेम, मैं बनाऊंगा 20 मिनट की वीडियो, क्योंकि देखो जब 2 हफ्ते से वीडियो नहीं डाली तो 20 मिनट की वीडियो बनानी पड़ेगी, फिर कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एथलेटिक के गेम की। गाइस, द परफॉर्मेंस, द फाइट दैट वी पुट इन दैट गेम, अगर आप कल को मुझे ये बोलो कि बार्सिलोना की ये टीम उस परफॉर्मेंस के साथ चैंपियंस लीग जीतने वाली है, तो मैं बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करूँगा। दैट परफॉर्मेंस भाई सब कुछ लगा दिया था हमारे लॉन्डो में। दे जस्ट मिस्ड बाय जस्ट अ सिंगल गोल, बट गाइस कम ऑन, सम थिंग्स आर कंसर्निंग, वो तो हमेशा से रही हैं, बट I don't know when we are going to work on those things. Ferran Torres, शार्की, फेरान, मैं हाथ जोड़ता हूँ भाई तेरे, तू क्या कर रहा है भाई? तू कर क्या रहा है? तू मेरे से क्या चाहता है? मुझे खुश नहीं देखना चाहता? तू चाहता है कि मैं ये मेरी जो विंडो है इससे छलांग मारूँ? तू क्या चाहता है?
भाई तू क्या चाहता है फरहान? वी नीड टू क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन भी क्या करूं फरहान टोरेस से? फरहान टोरेस तू एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है तू भाई? तू यार मैं हाथ छोड़ता हूँ, तू गोल मार ले यार। फरहान टोरेस ने सबसे ज्यादा गोल मारे वाले हमारी टीम में, बट वो गोल कैसा है मैं बताता हूँ। 20 चांसेस मिलते हैं फरहान टोरेस को, वो एक मारता है। भाई फरहान टोरेस, मैं तुझे, क्या बंदा है भाई तू फरहान टोरेस, तू क्या बंदा है यार तू भाई, तू उसका बंदा है यार, तू ऊपर वाले का बंदा है। ठीक है, हाथ जोड़ता हूँ मैं आपसे फरहान टोरेस, प्लीज प्लीज रॉबर्ट लेवेंडोस्की के पास जाओ। आपकी टीम में ना इस जनरेशन का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है, ठीक है? इट्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रॉबर्ट लेवेंडोस्की, सेकंड बेस्ट स्ट्राइकर ऑफ दिस जनरेशन। हाथ जोड़ के विनती करता हूं उसके पास जाओ और बोलो शूट कैसे करूं, शूट कैसे करते हैं, मेरे पैर नहीं चलते, शूट कैसे करूं? मैं परेशान हो चुका हूं, मुझे मदद करो, मुझे मदद की जरूरत है। फरहान टोरेस ने अकेले हमको मैच हरा दिया, फरहान टोरेस ने खत्म कर दिया भाई, खेल खत्म कर दिया फरहान टोरेस। दिस इज फ्रस्ट्रेटिंग भाई। फरहान टोरेस बेंच पे जाओ, वापस मत आओ। नहीं एक्चुअली पिछले सीजन फरहान टोरेस अच्छा था फ्रॉम द बेंच, ठीक है? फ्रॉम द बेंच फरहान टोरेस अच्छा है। डू नो मेरी स्टार्टिंग 11 में मैंने रॉबर्ट लेवेंडोस्की को इसलिए रखा क्योंकि मेरे पास स्ट्राइकर का ऑप्शन नहीं है। होल्ड ऑन है। लेट मी टेल यू अ वे दैट वी कैन सेटल इट, ठीक है? व्हाट इफ वी प्ले रफीनिया, लामिन यमाल एंड मार्कस रैशफोर्ड एट द सेम टाइम? रफीनिया को शिफ्ट नहीं करते हुए, क्योंकि मैंने काफी बार देखा जब हाथ फ्लिक इन तीनों को साथ में खिलाता है तो वो रफीनिया को शिफ्ट कर देता है मिडिल में। नहीं, रफीनिया को लेफ्ट पे ही रखो, शिफ्ट मार्कस रैशफोर्ड सेंट्रल, क्योंकि मार्कस रैशफोर्ड हमेशा सेंट्रल आके गोल मारता है। रिमेंबर न्यूकासल वाला गेम, उसने लेफ्ट से शिफ्ट लिया राइट की तरफ एंड देन ही फाउंड स्पेस और उसने शूट करा। शूटिंग एबिलिटी मार्कस रैशफोर्ड की बहुत अच्छी है। एस्टन विला, मैं स्ट्राइकर इसलिए कह रहा हूँ, एस्टन विला में मार्कस रैशफोर्ड स्ट्राइकर ही खेलता था। ही हैज द एक्सपीरियंस ऑफ प्लेइंग स्ट्राइकर एज वेल। ऐसा नहीं है कि वो नहीं खेल सकता, बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा लौंडा। कुछ तो भाई एटलीस्ट कुछ तो कर लेगा। आई नो उसकी फिनिशिंग तो फरहान टोरेस से भी गंदी है, बट ठीक है यार, अब यही है अपना क्लब। एक्सेप्ट द रियलिटी, एक्सेप्ट द ट्रूथ, दिस इज फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, वी डोंट हैव अ स्ट्राइकर। समर में स्ट्राइकर खरीद लेना, याद से कह रहा हूँ मैं, तुम्हारा गर्दन पकड़ के क्या करूँ मैं? मेंटल हेल्थ समझ रहे हो मेरी, मैं पागल हो रहा हूँ, ठीक है? ओके, मूविंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। बट 22 मिनट हो चुके हैं, समझ नहीं आ रहा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं। ऐसा करता हूँ आज 2 वीडियो डालता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शाम को, तब तक के लिए सी यू अगेन।